हेलो स्टूडेंट। आज हम बनाने हैं मॉडल पेपर 2022 सेकंड पार्ट। पहले वीडियो में मैंने कुछ आपका सेक्शन सी सोल्व किया है। अब हम सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एंड फर्स्ट वी विल टेक द पार्ट ई। 2E is the Lorentz series expansions of fz equal to z plus 4 upon z plus 3 z minus 1 का square, and there are the two part we want to solve. Take this one. So fz equal to question number 2 E part, f of z is equal to z plus 4 upon z plus 3 and this z minus 1 का square. First write the partial fraction a upon z plus 3 plus b upon z minus 1. We will start from power 1 and goes up to power 2, and this is c upon z minus 1 का square. For first part, it is given that 0 to modulus of z minus 1 less than 4. So let us suppose we say z माइनस 1, इसको हम t मान लेते हैं, तो z इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास t प्लस 1. पुट इन द गिवन पार्शियल फ्रैक्शन, वी विल राइट दिस इज इक्वल टू a अपॉन दिस इज t प्लस 4 प्लस b अपॉन t प्लस c अपॉन t स्क्वायर. यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास ग्रेटर वैल्यू को वी विल टेक एज कॉमन. यहाँ पे देखिए दिया है आपके पास 0 मॉडुलस ऑफ t लेस देन 4. बिटवीन t एंड 4 which one is greater? 4 is greater. To write this a upon 4, and this we can write 1 plus t by 4. उसको ऊपर ले आएंगे तो आ जाएगा -1 प्लस b अपॉन t प्लस c अपॉन t स्क्वायर. अप्लाई द फार्मूला 1 प्लस x होल पावर -1, that is 1 minus x plus x square minus x cube and so. Here x is equal to t by 4. Write this a upon 4, and this is 1 minus t by 4 plus t by 4 whole square and so on. And here plus same b upon t plus c upon t square, and put the value of t equal to z minus 1. Is the b part. In the b part, given as modulus of z minus 1 greater than 4 or modulus of t is greater than 4. For this one, start from the partial fraction a upon t plus 4. This is b upon t, and this is c upon t square. Now you can see that between t and 4, t is greater than. So value is a upon t. So we will always see the modulus value, right? If here is -4, then also we will take t as common. A by t, you can write this 1 upon 4 upon t whole power -1 plus b upon t plus c upon t square, right? Expand this one, you can write a upon t, and this is
व्हाट इज एक्स? एक्स इज हियर 4/t, तो 1 प्लस 4/t प्लस, हाँ यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, प्लस 4/t होल स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस b/t प्लस c/t square. Now we will find out the value of ABC. So take the LCM, and when we'll take a LCM, we will get from here z plus 4. We get z plus 4 equal to, for finding ABC, A, and this can be written as z minus 1 का square plus B z plus 3, and this is z minus 1 plus C z plus 3. For finding the value of A, we will say A, the denominator part of A equal to 0. That means z plus 3 equal to 0, z equal to minus 3. We get this minus 3 plus 4 equal to A minus 3 minus 1 का square. So we can say A equal to 1/60. Now for C, put the denominator part as 0. So z minus 1 equal to 0, z equal to 1. If you put here this one, so 1 plus 4 equal to, this is C, 1 plus 4. You can say B equal to 1/5. Sorry, C, D. Yes, 3, 5 by 1 plus 4 is 1/3. The coefficient of C is z plus 3, so 1 plus 3, this is 5/4. Value B is 5/4. तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/16, B की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/4, C की, एंड फॉर B आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी यहाँ से. तो z इक्वल टू, लेट अस सपोज B से 0, इसका वैल्यू 0 पुट कर देते हैं. 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा A प्लस B इंटू 3 प्लस C इंटू 3. फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B, राइट. ये था हमारे पास E पार्ट. अब हम इसे वापस चलते हैं. अब इसके बाद दूसरा पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे. लेट अस सपोज D पार्ट लेते हैं यहाँ से, पार्ट D, 2 का D पार्ट. D पार्ट में आपसे कह रहा है कि fz दिस इज इक्वल टू x की पावर 4 y क्यूब y माइनस आई एक्स अपॉन x की पावर 8 प्लस y की पावर 6. That is not equal to 0, and this value is given 0 at z equal to 0. यहाँ से रियल इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. u इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 4 y की पावर 4 अपॉन x की पावर 8 प्लस y की पावर 6. इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ x की पावर 5 y की पावर 3 अपॉन x की पावर 8 प्लस y की पावर 6 हो जाएगा, राइट. z इक्वल टू 0 पे u v दोनों 0 हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे वी कैन राइट 0 प्लस आई 0. फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है CR इक्वेशन सेटिस्फाइड. CR इक्वेशन के लिए सबसे पहले ले लेते हैं del u by del x. del u by del x आप लेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड u ऑफ x, अदर पार्ट ले लेते हैं 0, माइनस u 0 0 अपॉन x. दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x tending to 0 u x 0. Here if we put y equal to 0, so we get 0. 0 minus 0 upon x, that is equal to 0. फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे del v अपॉन del y. del v अपॉन del y. del v अपॉन del y
ये हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 v, because we are derivative with respect to y, तो take here x as part as 0, तो u v of 0 y minus v of 0 0 अपॉन y। अब देखिए अगर y v में अगर आप इसमें x को 0 पुट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0 आएगी, तो दिस 0 minus 0 upon y equal to 0. From here you can see that del u by del x equal to del v अपॉन del y, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपसे कहता है del u अपॉन del y। नाउ टेक del u by del y, del u upon del y, that is limit y tending to 0 u of 0 y minus u of 0 0 upon y. Again limit y tending to 0, you can see that if we put x equal to 0, whole function is 0, so 0 minus 0 upon y, that is equal to 0. Now take this one, del v upon del x, इसको आप लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 v of x 0 minus v of 0 0 upon x. Again लिमिट x टेंडिंग टू 0 v x 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो होल फंक्शन 0 हो जाएगा, 0 minus 0 upon x equal to 0. So we can say CR equation satisfied, both the CR equation satisfied. Okay, satisfied. Now we have to prove that f dash 0 is not unique or fz is not analytic at origin. तो हम यहाँ से लेते हैं f0, f dash of 0. By first principle you can write this limit z tending to 0 f of z minus f of 0 upon z. This can be written as limit z tending to 0 fz है मेरे पास x की पावर 4 y क्यूब अपॉन x की पावर 8 प्लस y की पावर 6, एंड हियर इज y माइनस ix माइनस 0 अपॉन x प्लस आई वाई। z की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास x प्लस आई वाई। दिस कैन बी टेन एज लिमिट z टेंडिंग टू 0 x की पावर 4 y की पावर 3 अपॉन x की पावर 8 y की पावर 6, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में x प्लस आई वाई। नोमिनेटर में देखिए हमारे पास है यहाँ पे y माइनस आई एक्स, अगर आप इसको i से मल्टीप्लाई कर दे और i से नीचे डिवाइड कर दे, ये जो होल टर्म है आपके पास, दिस होल टर्म, दिस बिकम द x प्लस आई वाई, और यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वी विल गेट फ्रॉम हियर लिमिट z टेंडिंग टू 0 x की पावर 4 y की पावर 3, 1 अपॉन आई आ जाएगा यहाँ से बाहर, अपॉन x की पावर 8 प्लस y की पावर 6, वाट एवर इन डिनोमिनेटर, यहाँ से इनका रिलेशन निकाल लेते हैं, x की पावर 8 इक्वल टू y की पावर 6, दोनों टर्म को इक्वल कर दीजिए, एंड ये आ जाएगा यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 4 जा दिस, वी कैन सपोज दैट y क्यूब इक्वल टू mx की पावर 4. इट विल वर्क इन ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से सोल्व करेंगे। टेक पाथ हियर, लेट वी से y क्यूब इक्वल टू mx की पावर 4। अभी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 अपॉन आई, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं x की पावर 4, y क्यूब हो जाएगा mx की पावर 4 अपॉन x की पावर 8, y 6 क्या होगा y क्यूब की पावर 2, दैट मीन्स mx की पावर 4 होल पावर 2। ऊपर नीचे से x की पावर 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा m अपॉन आई
1 प्लस एम स्क्वायर। अब दो पाथ लेके आपको उसकी वैल्यू को डिफरेंट दिखाना है, देन वी कैन से एफ डैश जीरो नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो पाथ वन हम ले लेते हैं यहाँ पे, पाथ वन, लेट अस सपोज एम इक्वल टू वन रख देते हैं। एम इक्वल टू वन का मतलब हो गया वाई क्यूब इक्वल टू एक्स की पावर फोर आपने लिया है, तो एफ डैश जीरो इसकी वैल्यू होगी वन अपॉन आई इंटू टू हो जाएगी, वन प्लस वन टू, वन अपॉन टू आई, राइट। अब ले लेते हैं इसमें पाथ टू, पाथ टू में ले लेते हैं पाथ टू, एम इक्वल टू टू ले लीजिए, वाई क्यूब इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे टू एक्स की पावर फोर, एम की वैल्यू टू लेंगे तो एफ डैश जीरो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, दैट इज आ जाएगी टू अपॉन आई इंटू फाइव। वी कैन सी दैट एफ डैश जीरो इज नॉट unique, so we can say fz is not analytic at z equal to जीरो। तो ये हमारा इसका हो गया बी पार्ट। डी पार्ट कर लिया हमने, किस कर लिया। अब हमें एक पार्ट और करना है यहाँ से। एक क्वेश्चन है हमारे पास फोरियर सीरीज, एक है आपके पास डिरिचलेट थ्योरम, तो विल टेक द डिरिचलेट थ्योरम क्वेश्चन, राइट। दैट मीन्स पार्ट बी यहाँ से सोल्व करेंगे, पार्ट बी। पार्ट बी ले लीजिए। पार्ट बी में आपसे कह रहे फाइंड द वॉल्यूम एंड मास ऑफ, आपको गिवन है एक्स स्क्वायर, इलिप्सॉइड आपको दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू वन, एंड डेंसिटी रो आपको दिया है के ऑफ एक्स वाई जेड। अगर ये पार्ट एग्जाम में आएगा तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। मैं आपको स्पेशल एक फार्मूला बता रहा हूँ, इस फार्मूले से डायरेक्ट आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे। सभी क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम मास का आपको क्वेश्चन दिया है, यू राइट द वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट, वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट, वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट वी विल राइट दिस टेबल इंटीग्रेशन v फंक्शन मानेंगे वन dx dy dz, ये आपको लिखना है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आपके पास डिरिचलेट थ्योरम, क्या लिखेंगे, अप्लाई डिरिचलेट जनरलाइज्ड थ्योरम। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए आपको इसका पूरा फार्मूला लिखना पड़ेगा, उसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा टेबल इंटीग्रेशन v एक्स की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन, जेड की पावर n माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। अगर यहाँ पे आप हम v हम सपोज कर लें x अपॉन ए की पावर अल्फा, y अपॉन बी की पावर बीटा एंड z अपॉन सी की पावर गामा लेस देन इक्वल टू वन, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स रीजन इन गिवन इन फर्स्ट ऑक्टेंट, राइट। तो आंसर इसका क्या होगा हमारे पास, डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे ए की पावर एल, बी की पावर एम, सी की पावर एन अपॉन अल्फा बीटा गामा, एंड यहाँ पे आ जाएगा एल अपॉन अल्फा, एम अपॉन बीटा, एन अपॉन गामा अपॉन सबका सम कर देंगे एल अपॉन अल्फा, एम अपॉन बीटा, एन अपॉन गामा। ये फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास v क्या था, v को हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं फार्मूले की। यू कैन राइट दिस x अपॉन a की पावर टू प्लस y अपॉन b की पावर टू प्लस z अपॉन c की पावर टू और इक्वल टू वन। फर्स्ट ऑक्टेंट पहले से हमने लिया है, तो ये सेम रीजन हो जाएगा। तो कंपेयर करेंगे हम इसको, राइट। कंपेयर करके आंसर लिखेंगे, कंपेयर विथ फार्मूला। तो कंपेयर करके देखिए क्या मिलेगा। हमें यहाँ से क्या चाहिए, आपको यहाँ से
LMN अल्फा बीटा गामा चाहिए, लिख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज LMN? LMN कहाँ से आएगा? ये फंक्शन से आएगा, विल फाइंड फ्रॉम द फंक्शन। अल्फा बीटा गामा ये कहाँ से आएगा? ये आपका रीजन से आएगा, सॉलिड से। ABC कहाँ से आएगा? ये भी आपका सॉलिड से आएगा। अब देखिए ये फंक्शन है 1, इसके लिए एक्स वाई जेड की पावर क्या है? 0 है। x0 y0 z0, इनकी पावर में 1 ऐड करेंगे तो LMN आ जाएगा। तो L की वैल्यू हो गई 1, M हो गया 1, N हो गया 1। वॉल्यूम में ऑलवेज LMN 1 ही रहेगा। अब रीजन पे आते हैं। एक्स वाई जेड की जो पावर होगी वो अल्फा बीटा गामा होगा। तो यहाँ पे हो गया अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2। ए यहाँ पे सेम है, ए बी है आपके पास, बी सी है आपके पास, सी। ये वैल्यू उठाकर रख देते हैं यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू ए की पावर एल, एल है 1, हो जाएगा ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि आपका सेकंड वाली रो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट अपॉन सेकंड करते हैं इसमें, राइट। एल अपॉन अल्फा क्या हो जाएगा? 1/2, ये भी आ गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, सबका सम प्लस 1। दिस इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। ये आ गया। इसको हम गामा फंक्शन को सोल्व कर दीजिए यहाँ पे। गामा फंक्शन सोल्व करते थे यहाँ पे। दिस वन इज इक्वल टू ABC अपॉन 8, गामा 1/2 हो जाएगा रूट पाई, दिस इज अगेन रूट पाई, इसको गामा 1/2 रहने देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा गामा ऑफ 5/2। तो आंसर यहाँ से आ जाएगा, देखिए दिस इज इक्वल टू ABC अपॉन 8 पाई गामा हाफ, गामा 5/2, एक कम करके स्टार्ट करेंगे, 1 लेस करिए, 5/2 माइनस 1 3/2 1/2, एंड ये आ जाएगा गामा ऑफ 1/2। बिकॉज फार्मूला होता है हमारे पास गामा n इक्वल टू n गामा ऑफ n माइनस 1। यू कैन सी दैट द आंसर इज ABC पाई, कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा मेरे पास 6। दिस इज द वॉल्यूम। अब आते हैं आपके मास पे, मास इन फर्स्ट ऑक्टेंट। मास इन फर्स्ट ऑक्टेंट, ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए टेबल इंटीग्रेशन, एंड यहाँ पे होगा फंक्शन हो जाएगा इसका रो डेंसिटी, दिया होगा आपको पहले से। सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपको, अगर वॉल्यूम मास का क्वेश्चन रहता है। इसकी वैल्यू रख देते हैं रो की एक्स वाई जेड आपको गिवन है, कि ये हो जाएगा एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। अब अगेन इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पावर क्या एक्स वाई जेड की 1 1 1 है, इसका मतलब हो गया L इक्वल टू पावर 1 है तो 1 और ऐड कर दीजिए, L2, M इक्वल टू 2, N इक्वल टू 2 हो गया। ओके, एंड अल्फा बीटा गामा है तो आपका सेम रहेगा, अल्फा 2 ऊपर जैसे हमने फाइंड आउट किया, बीटा 2 गामा 2, और यहाँ पे N हो जाएगा आपके पास, ये A इक्वल टू A रहेगा सेम, जैसे ऊपर था B इक्वल टू B, C इक्वल टू C। इसका आंसर अगर हम लिखेंगे ऊपर से बाई फार्मूला, जो आपने फार्मूला उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार पूरा फार्मूला लिखा होना चाहिए, राइट। फार्मूला से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताएं? के ए की पावर एल, ए की पावर एल का मतलब थर्ड रो की पावर फर्स्ट रो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा गामा 2 इंटू 2 इंटू 2, एल अपॉन अल्फा 2/2, एम अपॉन बीटा 2/2, एन अपॉन गामा अगेन 2/2, अपॉन सबका सम प्लस 1, याद आ जाएगा 1 + 1 + 1 + 1। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बताना है। याद देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू के हो जाएगा के टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8, एंड यहाँ पे गामा 1 होता है 1 अपॉन गामा 4। गामा 4 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास फैक्टोरियल 3
तो यहाँ से आ जाएगा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48। ये हमारे पास ये क्वेश्चन बना सोल्व, राइट। अब हमारे पास देखिए दो पार्ट इसमें बचे, ये दो पार्ट को भी एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने क्या किया क्वेश्चन में, पहले आपको उस पार्ट को अटेम्प्ट करना है जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। लेट अस सपोज इन 3 यूनिट से हमें सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाए, तो फिर हम यूनिट 1 लेते हैं। यूनिट 1 2 का ए पार्ट ये हम कब ले रहे हैं, अगर हमारे पास और कोई ऊपर का कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो पाए तो। इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मोस्ट प्रोबेबल एक क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए, आइदर चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आएगा, नहीं तो फिर आपका नॉर्मल फॉर्म से आएगा। इस यूनिट में ये दोनों टॉपिक करना बहुत ही जरूरी है, बहुत आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। इसलिए मैं इसको भी सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। ई की पावर माइनस कोस एक्स, ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास पी क्या है, वाई डैश को कोफिशिएंट है, तो पी है मेरे पास 3 साइन एक्स माइनस कोट एक्स, एंड आपका क्यू आपको दिया है यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड आर हमको दिया है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर माइनस ऑफ कोस एक्स। इस मेथड से सोल्व करने के लिए हमारे पास क्यू में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और ये जो पार्ट है दिस वन साइन स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर रूट करें तो हमारी इंटीजर पावर आनी चाहिए, यानी इवन पावर होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है Q1 का। Q1 होता है Q अपॉन dz बाई डी एक्स होल स्क्वायर। इसको आप ऑलवेज मानेंगे दिस वन, कॉन्स्टेंट वाली टर्म मानेंगे विद साइन, इसको मान लीजिए 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखिए Q की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन dz बाई डी एक्स होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 2। अगर आप इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, ऑलवेज इस वाले पार्ट का जो आपका सेकंड पार्ट था दिस वन, इस वाले पार्ट का क्या आएगा, इसका रूट आएगा dz बाई डी एक्स। वी कैन सी दैट dz अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, इंटीग्रेट करेंगे तो z आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ कोस एक्स, एंड व्हाट इज द डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे dz बाई डी एक्स को, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कोस ऑफ एक्स। अगर हमारे पास अब हमें निकालना है P1, अगर P1 हमारा क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो कांस्टेंट आने का मतलब क्या होगा, ये मेथड से सोल्व हो जाएगा। तो P1 का फार्मूला होता है डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये फार्मूला। ऊपर से वैल्यू रख देते हैं, तो डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है मेरे पास, कोस एक्स है। पी क्या है, पी है मेरे पास 3 साइन एक्स माइनस कोट एक्स है, एंड व्हाट इज द डी जेड बाई डी एक्स, ये हमारे पास आया था साइन एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो कोट इंटू साइन, कोसाइन हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का कोसाइन होने से ये वाली टर्म से फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, आंसर हमें मिल जाएगा 3। कांस्टेंट मीन्स इस मेथड से सोल्व हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसमें R1 पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, R1 हमारे पास होगा R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बहुत ही केयरली हमें काम करना है, आंसर हमारा करेक्ट आएगा तभी हमें नंबर मिल पाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर माइनस ऑफ कोस एक्स, एंड यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू आ गई हमारी ई की पावर माइनस ऑफ कोस एक्स। इसको ऑलवेज आपको किस में रखना है, इन जेड रखना है, तभी हम सोल्व करेंगे। तो इन जेड अगर हम इसकी वैल्यू को देखें तो क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड हो जाएगा, राइट। आपको उसको उठा के इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसकी इक्वेशन होगी अब क्या, डी स्क्वायर प्लस P1D प्लस Q1 एंड y इक्वल टू R1।
यहाँ पे हमने टी को सपोज किया है डी बाई डी जेड, इसलिए हम इसको कहते हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सारे इसके आंसर किस में लिखे जाएंगे, डी में लिखे जाएंगे। तो डी स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू भी निकाली 3D और Q1 आपने माना था 2, y इक्वल टू ई की पावर जेड। m की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, -1 -2 आ जाएगा। CF क्या होगा, CF आपको किस में रखना है, जेड में रखना है। कितने पुट करेंगे, जेड में। तो क्या हो जाएगा, C1 ई की पावर माइनस जेड प्लस C2 ई की पावर -2z। नाउ वी विल फाइंड आउट द PI। PI क्या होगा देखिए, PI हो जाएगा मेरे पास 1/d स्क्वायर प्लस 3D प्लस 2, उसके साथ में हमें चाहिए इंटू ई की पावर जेड। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो डी की वैल्यू रख दीजिए 1, यहाँ से आ जाएगा 1/6 ई की पावर जेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बताएं। तो यहाँ से आ जाएगा वाई इक्वल टू CF प्लस PI, और CF था मेरे पास C1, जेड की वैल्यू रख देते हैं माइनस कोसेक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर कोसेक्स प्लस C2 ई की पावर 2 कोसेक्स प्लस 1/6 ई की पावर -ऑफ कोसेक्स। ये इसका आंसर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। एक पार्ट अभी इसमें और है, दैट इज फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको 4 नंबर लाने, 4-5 नंबर अगर हमें चाहिए, पूरे नंबर की हम रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटीग्रेशन हमें नहीं आता है बहुत ज़्यादा, तो आप इस वाले पार्ट को कर सकते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, दिस सी पार्ट 30 यूनिट का क्वेश्चन से फोरियर सीरीज। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं f(x) आपको गिवन है 1 - 2x अपॉन पाई, लिमिट हमें दिया है -पाई से x से 0, एंड दिस इज 1 प्लस 2x अपॉन पाई। ये लिमिट दिया है आपको 0 to x to पाई। तो नीचे वाले में माइनस है, ऊपर वाले में आपका प्लस है, ये दिया आपको दिस। इसके लिए हमें सोल्व करना है। ओके, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिखेंगे फोरियर सीरीज। आपसे पूछा है फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज का सबसे पहले फार्मूला लिखना है। जनरलाइज फार्मूला में लिख रहा हूँ, f(x) इक्वल टू OE0/2 सिग्मा ऑफ an कोस n पाई अपॉन lx। ओके, दिस प्लस सिग्मा bn साइन ऑफ n पाई अपॉन lx। ये आपने लिख दिया। L की वैल्यू यहाँ पे होगी हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 होगा। अब देखिए, लोअर लिमिट है -पाई, अपर लिमिट है पाई, वी कैन राइट पाई माइनस पाई अपॉन 2, यह आ जाएगा यहाँ से पाई। ये वैल्यू उठा के इस फार्मूले के अंदर रख दीजिए। यहाँ से देखिए, फार्मूले में रखने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से विल गेट फ्रॉम हियर A0/2 प्लस सिग्मा ऑफ an कोस nx हो जाएगा, पाई से ऊपर का पाई कट जाएगा, प्लस सिग्मा ऑफ bn साइन ऑफ nx। A0 इसका फॉर्मूला होता है 1/L, लोअर लिमिट 2, इसको याद रख सकते हैं। सारे क्वेश्चन में ये फार्मूला आपको लगाना है फोरियर सीरीज के लिए, है ना, f(x) dx। L है यहाँ पे मेरे पास 1/पाई, लोअर लिमिट है -पाई, अपर लिमिट है पाई, यहाँ पे मैंने ले लिया f(x) dx। अब देखिए, ये -a to a है, अगर इसमें इवन ऑड फंक्शन प्रूफ कर दे हमारे इंटीग्रेशन कुछ इजी हो जाएगी, राइट। इसको क्या करते हैं, इवन ऑड फंक्शन के हिसाब से चलते हैं। यहाँ से फाइंड आउट करके देखते हैं f ऑफ -x क्या होता है। f ऑफ -x आप देखेंगे तो आ जाएगा 1 - 2x अपॉन पाई, एंड लिमिट हो जाएगी मेरी -पाई से -x to 0।
और सेकंड वाला हो जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन पाई, एंड इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू x टू पाई। अगर हम इसे माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो लिमिट क्या आ जाएगी, ये लिमिट बन जाएगी 0 टू x टू पाई हो जाएगी, दिस वन। और नीचे वाली लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास, माइनस पाई से x से 0। अब देखिए चेक करते हैं, माइनस पाई से 0 फंक्शन है 1 प्लस 2x अपॉन पाई, एंड माइनस पाई से 0 फंक्शन है 1 प्लस 2x अपॉन पाई। अब दूसरा चेक करते हैं, 0 से पाई वैल्यू है 1 माइनस 2x अपॉन पाई, 0 से पाई है वैल्यू 1 माइनस 2x अपॉन पाई। वी कैन से दैट f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब जो फंक्शन है हमारा वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इवन फंक्शन में माइनस ए टू है 2 टाइम्स हो जाएगा, और ओड फंक्शन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। इसी पे चलते हैं यहाँ पे। तो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, इंटीग्रेशन हो गया 0 से पाई, एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं इसमें 1 माइनस 2x अपॉन पाई डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 0। विल फाइंड आउट द वैल्यू इक्वल टू 0। नाउ वी कम्स ए एन। व्हाट इज ए एन, एन हो जाएगा देखिए 1 अपॉन एल, पहले ये फार्मूला आप लिखेंगे, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ एक्स, कोस के मल्टीप्लाई में जो आपने सपोज किया था यहाँ पे लिख दीजिए कोस एन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, पहले वैल्यू रख देते हैं एल की 1 अपॉन पाई, लिमिट हो जाएगी माइनस पाई से पाई, एफ एक्स अभी हमें पता नहीं है, कोस एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास फंक्शन कैसा फंक्शन है, एफ एक्स। एफ एक्स फंक्शन हमारे पास है इवन, ये भी कैसा फंक्शन है, इवन है, और इवन इंटू इवन क्या होता है मेरे पास, इवन फंक्शन होता है। इसीलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन पाई, ये हो जाएगा 0 से पाई एफ एक्स, एंड दिस इज कोस एन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू 2 अपॉन पाई, एंड दिस इज 0 टू पाई ये जाएगा देखिए 0 से पाई 1 माइनस 2x अपॉन पाई, एंड दिस इज कोस एन एक्स डी एक्स। इसमें आप लिमिट लगा देते हैं फार्मूला u इंटू वी। u इंटू वी फार्मूला क्या है बताएं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 एंड सो। यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई u, u हो गया मेरे पास 1 माइनस 2x अपॉन पाई, v कोस एन एक्स, इंटीग्रेशन हो गया साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया मेरे पास माइनस 2 अपॉन पाई, सेकेंड का इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, एंड लिमिट आप रख देंगे 0 से लेके पाई तक। ओके, तो इसको 0 से पाई लिमिट रख के आप सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास आएगी यहाँ से, अगर आप देखेंगे इसमें साइन एन एक्स, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 पे भी पाई पे भी। तो ये मैं चलिए सोल्व कर देता हूँ, 2 अपॉन पाई माइनस माइनस प्लस माइनस, कॉन्स्टेंट टर्म पहले बाहर लिख लेते हैं, माइनस 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर, यानी बचा कोस एन एक्स, कोस एन एक्स हो जाएगा कोस एन पाई माइनस कोसाइन ऑफ 0, विल गेट फ्रॉम एयर 4 अपॉन माइनस 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एंड दिस इज
-1 की पावर n -1। अब इसमें एक पार्ट आपको दिया है क्वेश्चन में कि आपको एक सीरीज दी है, उस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एफ लिखेंगे। फोरियर सीरीज क्या है हमारे पास, एफ एक्स a0/2 हो गया 0 प्लस सिग्मा an था मेरा -4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एंड दिस इज -1 की पावर n -1, ये हो गया दिस वन। और यहाँ पे हो गया कोस n पाई एक्स एन एक्स, एल की वैल्यू पाई थी इसमें, कोस एन एक्स 1 प्लस सेकेंड पार्ट हो गया 0। इसमें एक्स की कुछ वैल्यू रखनी है जिससे कि हमारे पास सीरीज फाइंड आउट हो जाए। सीरीज हमें चाहिए थी क्या, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर। इसका सम आपको प्रूफ करना था π²/8 होगा। इसको हम देखें यहाँ पे क्या वैल्यू रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं। पुट एक्स इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा f0, राइट हैंड साइड में आ जाएगा मेरे पास, सिग्मा को ओपन कर दे, ये ऐसे रहने देते चलिए, -4/π² n स्क्वायर, एन ये हो जाएगा -1 की पावर n -1 और ये होगा 0। f0 की वैल्यू देखे, f0 की वैल्यू में इसमें जो फंक्शन डिफाइन है 0 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए f0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/2 f0 प्लस f ऑफ 0 माइनस, इन दोनों का एवरेज होगा हमारे पास f0 की वैल्यू 0 माइनस 1/2 f0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन हमें गिवन है 0 से पाई के बीच में फंक्शन क्या है, 1 - 2x/पाई, एक्स की वैल्यू रख दी 0, यहाँ से 1 आ जाएगा। ऐसे ही 0 माइनस पाई से 0 क्या था, 1 + 2x/पाई, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 आ जाएगी। तो दिस इज 1 इक्वल टू -4/π², एन की वैल्यू 1 2 3 रख दीजिए, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रखने पे यहाँ से क्या आएगा आपका, -2 आ जाएगा, राइट, -2/1², 2 रख दीजिए 0, इवन फंक्शन 0 हो जाएगा, 3 रख दीजिए तो -2/3² एंड सो, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा आपका 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² एंड दिस इज π²/8। ये वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट करके बता दी। ये देखिए हमारे पास सेक्शन बी हमने इसके अंदर पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं इसमें सेक्शन ए। सेक्शन ए करने के लिए एक बार मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं ताकि इसको सोल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाए हमारे लिए। क्वेश्चन देखना भी आसान होगा। यहाँ ले, ये आ गया। 1 बाई 1 इसका पार्ट सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पार्ट ए, पार्ट ले लेते हैं। ए पार्ट में कह रहा है फाइंड द पी आई। पी आई क्या हो जाएगा बताएं, 1/, इसको आप लिख सकते हैं d - 2 का होल स्क्वायर, एंड इसको लिख दीजिए 8 e की पावर 2x, पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं आपके पास x² साइन ऑफ 2x, e की पावर x इंटू वी लगा दीजिए, 8 e की पावर 2x, a की वैल्यू हो गई 2। फार्मूला मेरे पास क्या है, 1/d की जगह पर रखना है d + a, 1/d + 2 और फिर राइट ये आ जाएगा आपका -2 होल स्क्वायर एंड दिस इज x² साइन ऑफ 2x, दैट इज 8 e की पावर 2x 1/d स्क्वायर
एक्स स्क्वायर साइन 2x। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन दे दिया है, तो आप इसको 2 टाइम इंटीग्रेट कर पाए तो कर दे, अदरवाइज छोड़ दे। 1 नंबर तो हमें यहाँ से मिल ही जाएगा। कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, हम उसका दो कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन में जितना हो पाए उतना हम मिनिमम करें, इससे कि हमें एक मिनिमम नंबर मिल पाए। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में यहाँ पे आप देखिए दिस वन, पावर एंड डेरिवेटिव दोनों सेम है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे यहाँ पे 2x+3, इसको e की पावर z मान लेंगे। 2x+3 e की पावर z मानेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव कन्वर्ट हो जाएगा ए स्क्वायर, ए है यहाँ पे 2, तो इसको ए स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज 2 स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगा d-1 y में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये सेकंड पार्ट दिस वन, ये कन्वर्ट हो गया मेरे पास ए हो गया 2 dy, थर्ड वाला पार्ट हो गया -12y, एंड CF के लिए ये हो जाएगा 0, 4CF। CF में क्या होता है, राइट हैंड पार्ट आपको 0 चाहिए, यहाँ से आप देख सकते हैं हो जाएगा 4d² -4d -2d -12, दिस y इक्वल टू 0 ले लेंगे, दिस इज 4d² -6d -12, दिस y इक्वल टू 0। यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, m की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी देख लीजिए, तो m इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3 ±√57। देखिए यहाँ पे आई नहीं है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये सर्ट्स आपके हमारे पास आया इसमें, इसका CF लिखेंगे हम जेड में, तो C1 e की पावर 3 +√57/4 जेड प्लस C2 e की पावर 3 -√57/4 जेड, ये हो जाएगा दिस वन। ये पार्ट आ गया हमारे पास। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे, सी पार्ट ले लेते हैं। सी में दिया है, देखिए यहाँ पे लोग 1/x को टी मान लेते हैं, राइट। सी पार्ट, लोग 1/x को टी मान लीजिए, यहाँ से आपके पास x आ जाएगा e की पावर -t, dx हो जाएगा e की पावर -t dt हो जाएगा, राइट। इसकी लिमिट लिख देते हैं यहाँ पे, लिमिट x0 पे हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। x0 कहेंगे t इन्फिनिटी हो जाएगा, x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा देखिए e की पावर -t इंटू टी होल पावर हमें दिया है 1/3, dx की वैल्यू रख देते हैं -e की पावर -t dt, माइनस साइन से लिमिट को चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, एंड e की पावर हो जाएगा देखिए यहाँ से -1/3 और यहाँ से हो जाएगा -1, तो दिस इज -1/3 -1, दैट इज -4/3 हो जाएगा, e की पावर -4/3t एंड t की पावर 1/3 dt। एक फार्मूला होता है इसके मेरे पास, गामा n अपॉन k की पावर n, गामा n क्या है यहाँ पे 1/3 से आएगा n, क्या हो जाएगा +1 करके हो जाएगा 4/3 आ जाएगा n, इसका आंसर हो जाएगा 4/3 अपॉन k की पावर n, k क्या है -4/3 है, तो दिस -4/3 की पावर 4/3, यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए दिया है आपके पास बीटा ऑफ दिस वन, डी पार्ट, डी पार्ट दिया है, राइट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, RHS बीटा फंक्शन को ओपन कर देते हैं, गामा m+1 गामा n अपॉन गामा ऑफ m+n+1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस गामा m गामा n+1 अपॉन गामा ऑफ m+n+1,
इसमें से आप कॉमन ले लीजिए गामा एम अपॉन दिस वन, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ एम प्लस एन, और यहाँ पे गामा एम प्लस एन। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बच जाएगा एम, यहाँ पे बच जाएगा एन। ओके, एम प्लस एन से एम प्लस एन कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा बीटा ऑफ एम एन आ जाएगा, राइट। डी पार्ट हो गया। ई पार्ट, ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट आपके पास है फाइंड द फूरियर कोफिशिएंट। ई पार्ट क्या है हमारे पास, फाइंड द फूरियर कोफिशिएंट ऑफ दिस वन, एफ एक्स इक्वल टू दिस एक्स माइनस एक्स क्यूब, और -1 से 1 आपको बी वन फाइंड आउट करना है, राइट। इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ई पार्ट इज ई पार्ट, एफ एक्स आपको दिया है, ये दिया है यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास -1 से x से 1। इवन ऑड फंक्शन चेक कर लेते हैं सबसे पहले। एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा -x, एंड ये आपका एक्स क्यूब दिया है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस ऑफ माइनस एक्स का क्यूब, वी कैन राइट माइनस ऑफ एफ एक्स, दिस इज ए ओड फंक्शन। तो बी एन क्या होगा हमारे पास, 1/L, एंड ये होगा -1 to 1, एंड एफ एक्स साइन एन पाई, एल की वैल्यू 1 हो जाएगी इसमें, एन पाई अपॉन 1x, ये आ जाएगा। हमें चाहिए b1, 1/1 -1 से 1 एफ एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। ये हमारे पास ओड फंक्शन, ये भी हमारे पास ओड फंक्शन, टोटल हो गया मेरे पास इवन फंक्शन। इसको फर्दर सोल्व कर देते हैं दोबारा से। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए दिस वन इज इक्वल टू माइनस, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 0 to 1 एफ एक्स रख देते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब साइन पाई एक्स डी एक्स। सोल्व कर दे इसको, सिंप्लीफाई आप लोग इसमें कर ही देंगे, सिंप्लीफाई करके मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा मेरे पास सोल्व करके 12/π²। ओके, अब बाकी पार्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट हमारे पास बचे यहाँ पे। इसको दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ, दिस वन। अब हमारे पास आ गया, आपके पास आई पार्ट आ गया, ई, एफ पार्ट आ जाएगा, एफ पार्ट पे आ जाते हैं। एफ पार्ट में कह रहे हैं आपका राबीज टेस्ट लिखिए, तो राबीज टेस्ट में आप लिख देंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टाइम्स ऑफ un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू का लैम्डा हो जाए, लैम्डा ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट हो जाएगा, लैम्डा लेस देन 1 डाइवर्जेंट हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 1, आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। अब आते हैं इसके जी पार्ट पे। जी पार्ट में देखिए आपको क्या कह रहा है, हाँ, फाइंड द इमेज मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 3। तो इसको मॉडुलस ऑफ z की फॉर्म में पहले लिख देता हूँ, 1 प्लस आई जेड इक्वल टू w माइनस, ये हो जाएगा 3 प्लस 2i। इसकी वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे, w को लिख देते हैं u प्लस आई वी, तो यहाँ से आ जाएगा u माइनस 3 प्लस आई, एंड ये हो जाएगा v माइनस 2। मॉडुलस ले लेते हैं बोथ साइड में, तो 1 प्लस आई मॉडुलस z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ u माइनस 3 प्लस आई v माइनस 2, ये आ जाएगा। तो 1 प्लस आई का मॉडुलस हो जाएगा √2, मॉडुलस z आपको गिवन है 3, यहाँ पे z देखिए 3 गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा इसका मॉडुलस हो जाएगा मेरे पास u माइनस 3
होल स्क्वायर प्लस v माइनस टू होल स्क्वायर, ये जी पार्ट हो जाएगा आपका, राइट। अब आते हैं यहाँ पे एच पार्ट पे। एच पार्ट आ जाते हैं। एच पार्ट में आपसे कह रहा है इसमें so that real and imaginary part of analytic function satisfied Laplace equations। तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, इसके लिए पहले हम एफ जेड मान लेते हैं। एफ जेड हो गया यू प्लस आई वी। देखो जी हमारे पास एनालिटिक है, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। फर्स्ट वाले को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा बताएं। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन, इसको वाई के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अगर ये सेकंड डेरिवेटिव हम आपका सेम मान लें तो ए प्लस बी, इसको मान लेते हैं बी है, ए प्लस बी अगर आप करेंगे तो वी विल गेट द लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है मेरे पास लाप्लास इक्वेशन होती है। ओके, अब हम आते हैं इसके आई पार्ट पे। आई पार्ट आपको क्या कह रहा है, इसमें इंटीग्रेशन करना है हमें 0 से 2 प्लस आई एंड जेड बार स्क्वायर डी जेड। पहले जाना है जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 2 जाना है, एंड देन जाना है जेड इक्वल टू 2 से जेड इक्वल टू 2 प्लस आई, इस पे चलना है। सबसे पहले लिख लेते हैं मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास। मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आई एक्स वाई हो जाएगा। पाथ 1 ले लेते हैं, जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 2। एक्स एक्सिस पे हम चल रहे हैं, इसका मतलब वाई 0 हो जाएगा, डी वाई भी हमारे पास 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास एक्स इक्वल टू 0 से 2, एंड ये इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, वैल्यू रख दीजिए वाई की वैल्यू 0, ये बैठेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर और डी जेड की वैल्यू हो जाएगा डी एक्स, बिकॉज डी जेड आप लिखेंगे डी एक्स प्लस आई डी वाई, तो डी वाई 0 हो गया तो डी एक्स रह गया, राइट। दिस इज हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब बाई 3, दैट मीन्स 8/3 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब ऐसे हमारे सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है जेड इक्वल टू 2 से 2 प्लस आई, दैट मीन्स इमेजिनरी एक्सिस पे चलना है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, डी एक्स हो जाएगी 0, तो एक्स 0 डी एक्स 0 में बताइए क्या हो जाएगा हमारे पास। यह आ जाएगा इंटीग्रेशन वाई इक्वल टू 0 टू 1, 2 प्लस आई का मतलब इमेजिनरी पार्ट हो गया 1। अब फंक्शन में देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए, यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 0 एंड डी एक्स प्लस डी वाई का रह जाएगा आई डी वाई। ओके, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस वाई क्यूब बाई 3, यानी कि आई बाई 3 हो जाएगा, माइनस ऑफ आई बाई 3। फाइनल आंसर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, तो आंसर इज 8/3 माइनस आई बाई 3, दिस इज आंसर। अब इसके लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। लास्ट पार्ट पे आपको कह रहा है ई की पावर 3z अपॉन 2z माइनस 1 का क्यूब, ई की पावर 3z जे पार्ट क्या दिया मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3z अपॉन 2z माइनस 1 होल क्यूब
डी जेड, इसका आपको बताना है इंटीग्रेशन। ओके, एंड मॉडुलस सी दिया है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1 दिया है। इसको सोल्व करते हैं। कोसी इंटीग्रेशन फार्मूला से सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर पार्ट को 0 रख दीजिए, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट कर दें। तो अब इसमें डिनोमिनेटर 0 पुट करेंगे, वी विल गेट 2z माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास z इक्वल टू 1/2 1/2 1/2। तो इससे आ जाएगा पोल ऑफ ऑर्डर 3। अब आपको देखना है 1/2 इस सर्किल के अंदर होगा कि बाहर होगा। इस पॉइंट किसके पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2 0, सेंटर हो जाएगा सर्किल का, सेंटर हमें गिवन है मॉडुलस जेड दैट मीन 0 0 सेंटर, तो 0 0 हो गया सेंटर, आर की वैल्यू हो गई 1, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू यह आ जाएगा 1/2 एंड दैट इज लेस देन आर, लेस देन आर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ये जो पॉइंट है हमारा इनसाइड द सर्किल है, इनसाइड द सर्किल है तो रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। रेसिड्यू को फार्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन थे पेपर के हिसाब से, कई बार बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है। रेसिड्यू एट z इक्वल टू z0 पोल ऑफ ऑर्डर मान लीजिए n, इसका फार्मूला है मेरे पास फैक्टोरियल 1/n-1 लिमिट z टेंडिंग टू z0 dn-1 अपॉन dzn-1 एंड z माइनस z0 होल पावर n एंड गिवन फंक्शन एफ जेड। यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, n की वैल्यू हमारे पास 3, यहाँ लिख देते हैं 1/2, n की वैल्यू 3 ले लेते हैं यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू 1/2 लिमिट z टेंडिंग टू 1/2 d2 अपॉन dz स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी देखिए मेरे पास z माइनस हाफ की पावर 3 एंड एफ जेड क्या था e की पावर 3z अपॉन, नीचे से 2 क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास z माइनस 1/2 की पावर 3, ये आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1/16 लिमिट z टेंडिंग टू 1/2, यहाँ से आ जाएगा e की पावर 3z का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 3 स्क्वायर e की पावर 3z। यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा दिस वन, आपके पास हो गया 1/16 यानी कि 9/16 e की पावर 3z। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन हम लिखेंगे यहाँ पे बाय रेसिड्यू थ्योरम। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ये था मेरे पास e की पावर 3z अपॉन 2z माइनस 1 होल क्यूब dz, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास 2πi सम ऑफ रेसिड्यूज। एक ही आपके पास है जो इनसाइड है, तो 2πi 9/16 e की पावर ये हो जाएगा मेरे पास 3/2, दैट इज 9πi अपॉन 8 e की पावर 3/2। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो हमने सेक्शन ए पूरा कंप्लीट सोल्व कर लिया। अब सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम आपके छोड़ दिए थे, राइट, उसी में से देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। सेक्शन सी पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, दिस वन, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं। क्वेश्चन इंटीग्रेशन फार्मूला से दिस क्वेश्चन सोल्व करना है, राइट।
इसको ले लेता हूँ मैं, 7th का बी पार्ट। क्योंकि भी कोस इंटीग्रेशन फार्मूला क्वेश्चन से अगर आप सोल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दिया है हमारे पास इंटीग्रेशन दिस सी 1/z² + 4 होल स्क्वायर dz एंड सी आपको दिया है मॉडुलस ऑफ z माइनस आई इक्वल टू 2 दिया है। सेम तरीके से डोमीटर पार्ट को 0 रख देते हैं। जब आप इसको 0 पुट करेंगे मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, देखिए z² + 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। विल गेट z इक्वल टू +-2y एंड दिस +-2y। तो हमें पता करना पड़ेगा कि दोनों पॉइंट में से विच पॉइंट इनसाइड विच पॉइंट आउटसाइड। यहाँ से देखिए सर्किल की इक्वेशन होती है z - z0 इक्वल टू r। सेंटर यहाँ पे क्या होगा मेरा 0 1 सेंटर हो जाएगा, r की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से दो पॉइंट आपको चेक करना है। पहला पॉइंट है मेरे पास 2i, 2i का मतलब पॉइंट हो गया 0 2। दूसरा पॉइंट है -2i, इसका पॉइंट हो गया 0 - 2। और अब डिस्टेंस इन दोनों के बीच के फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी 1 और यहाँ पे t की वैल्यू आएगी मेरे पास 9। तो पहले वाला पॉइंट हो गया इनसाइड एंड दूसरे वाला पॉइंट हो गया आउटसाइड। ओनली इनसाइड के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनसाइड के लिए रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो गया, z इक्वल टू 2i, ये हमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिया इनसाइड द सर्किल है। एंड विद पोल ऑफ ऑर्डर कितना हो गया, दो बार रिपीट हुआ है तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 मान लेते हैं इसको, राइट। तो रेसिड्यू निकाल देते हैं, रेसिड्यू इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू 2i 1/(n-1), तो 1/(1) dy dz ऑफ z माइनस z0, z0 यहाँ पे 2i, इसका स्क्वायर 1/, इसको फैक्टराइज करके लिख लेते हैं z + 2i का स्क्वायर इंटू z माइनस 2i का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया लिमिट z टेंडिंग टू 2i। ओके, एंड यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक बार। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा -2/, ये वाला तो पहले दूसरा पार्ट आपका कट जाएगा, माइनस वाला तो कट गया, तो आ जाएगा -2/z + 2i होल पावर 3। 2i पुट करेंगे तो आएगा -2/4i। इसकी पावर कितना आ गया आपके पास, इसकी पावर हो गया मेरे पास 3 हो जाएगा। ओके, 3 होने के बाद और i³ आई की वो लिख देखेंगे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, i³ माइनस आई लिख देंगे इसको। दिस इज इक्वल टू ऐसा आ जाएगा -2/, 4 चौक 16 चौको 64, 64 माइनस आई, यानी कि 1/32i आ गया। वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू
तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन मेरे पास था 1/z² + 4 होल स्क्वायर dz। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2πi बाई द रेसिड्यू थ्योरम सम ऑफ रेसिड्यू। तो सम ऑफ रेसिड्यू में लिख दीजिए 2πi एंड 1/32i, यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 16 आ जाएगा। दिस इज पाई बाई 16। ओके, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो गया। एक क्वेश्चन इसको और सोल्व कर लेते हैं बैठ के। दैट इज इसका क्वेश्चन था आपका बीटा फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि पेपर में हो। इसको भी सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए थे क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। पहले हमने सोल्व नहीं किया था इसको। 0 से 1 x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x⁴ dx इंटू 0 से 1 dx अपॉन 1 + x⁴। इसको आपको सोल्व करना है। दो मान लेते हैं इसमें। ये दिस इज मान लेते हैं फर्स्ट वन I1, इसको मान लेते हैं I1। इसमें सपोज कर लेते हैं x⁴ इक्वल टू टी, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू t⁴ तो dx हो जाएगा मेरे पास 1/4 t⁻³ -3/4 dt आ जाएगा, राइट। इसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे x² इक्वल टू I2 मान लेते हैं इसको, x² इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं। ओके, 2x dx ये हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। तो इन दोनों को सोल्व कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट वन को लिखें इंटीग्रेशन t इक्वल टू 0 to 1 x² की वैल्यू हो गई t⁻⁴ ये हो गया अपॉन 1 - t एंड दिस इज 1/4 t⁻³ -3/4 dt हो जाएगा। दिस इज 1/4 t इक्वल टू 0 to 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा t½ और 1 - t⁻³ ½ dt। इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा ऑफ दिस इज 1/4 -1/4 सॉरी t⁻⁻⁴ तो -1/4 + 1 3/4 आ जाएगा। दिस इज 3/4 एंड 1/2 ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। 1/4 इंटू दिस वन। सेकेंड वाले को सोल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा सेकेंड वाले की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 थीटा इक्वल टू 0 से π/4 हो जाएगा एंड दिस इज 1 अपॉन sec थीटा एंड दिस इज sec² थीटा d थीटा अपॉन 2 √of tan थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू 1/2 थीटा इक्वल टू 0 से π/4 0 से π/4 एंड ये आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन √of sin थीटा cos थीटा d थीटा दिस वन। इसको यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर देता हूँ। √2/2
थीटा 0 से π/4 1/रूट साइन 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा यहाँ पे, राइट। 2 थीटा को टी मान लीजिए, लेट 2 थीटा इक्वल टू टी, यहाँ से आ जाएगा 2 डी थीटा इक्वल टू डी टी आ जाएगा, राइट। फर्दर इसको सोल्व कर देते हैं। यहाँ से लिमिट क्या आ जाएगी बताएं, √2/dt/2 आएगा, 2 टी इक्वल टू 0 से π/2 आ जाएगी लिमिट, 1/रूट साइन टी हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 0 से π/2, फार्मूला क्या लगाना है इसमें, 0 से π/2 साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा डी थीटा 1/2 बीटा ऑफ p + 1/2 q + 1/2। ये फार्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए। क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए, p क्या है यहाँ पे, p है -1/2, तो -1/2 है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, दिस इज इक्वल टू √2/4 एंड यहाँ से आ जाएगा मेरा 1/2 एंड दिस वन 4 यस। तो बीटा -1/2 + 1 1/2, राइट, एंड दिस 1/4 आ जाएगा, राइट। बीटा 1/4 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/4√2, बीटा 1/4 हो जाएगा मेरे पास गामा 1/4 गामा 1/2 गामा हो 1/4 + 1/2 3/4। तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट मेरे पास क्या है, 1/4 बीटा हो 1/4 सॉरी 3/4 3/4 1/2 एंड ये हो गया मेरे पास 1/4√2 गामा 1/4 गामा 1/2 गामा 3/4। पहले वाले का बीटा फंक्शन ओपन कर देते हैं, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1/4, बीटा फंक्शन ओपन करते हैं, 3/4 1/2 गामा ऑफ 3/4 + 1/2 यानी 5/4 हो गया, है ना, गामा 5/4 एंड ये हो जाएगा आपका दिस 1/4√2 गामा 1/4 गामा 1/2 गामा 3/4। 3/4 से 3/4 कट जाएगा एंड यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1/4 गामा 1/2 का √π, ये हो गया मेरे पास 1/4 गामा 1/4 हो जाएगा एंड ये आ जाएगा यहाँ पे 1/4 एंड दिस हो जाएगा मेरे पास गामा 1/4√π। ये कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 1/4√2π एंड दैट्स ऑल। आप लोग बहुत ही ध्यान से तैयारी करिएगा, अच्छा पेपर करना है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में मैच करें, अच्छा लगे तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा 16 तारीख को, राइट, पेपर के बाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।